Hello students, today we are discussing the numericals of chapter 1 of accountancy part 1 NPO not for profit organization. Let's see the question number 1. You have to see from your textbook page number 48. Let's see question number 1. From the following particulars taken from the cash book of a health club, prepare receipts and payment account. In this numerical you have to prepare receipts and payment account of health club. तो सबसे पहले receipts and payment account बनाते समय हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पे मेंशन करना होगा. So we have to write in the books of health club. What we are making? Receipts and payment account. The left hand side, that is the debit side, is receipt side. The right hand side, the credit side, is payment side. So one by one we will see all the items from the question. Now here you have to remember that in receipts and payment account we have to record all types of receipts and payment, whether they are related to current accounting year or previous accounting year or next year, or whether they are of revenue nature or capital nature. Now starts with opening balance. To balance BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों ही बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिए हैं. कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 25000. द टोटल बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 30000. नाउ second item, to subscription. Subscription is the receipt of organization. So 1,65,000 we have to record in receipt side. Then the next item is donation. So 2 donations 35,000. Now come to the payment side. By investment 80,000. Next is by rent 20,000. By general expenses 21,500. By postage and stationery 2,000. By courier charges 1,000. By sundry expenses 2,500. Now by balance CD, cash in hand 12,000. Now in this numerical only closing balance of cash in hand is given to you. So your difference will be, you have to show by the name of cash at बैंक. आपको डेबिट साइड का टोटल करना है रिसीप्ट्स कॉलम का, और उसमें से पेमेंट साइड का टोटल माइनस कर देना है. जो भी बैलेंस होगा वो कैश एट बैंक के नाम से आपको रिकॉर्ड करना है. सो हेयर कैश एट बैंक, दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, इज़ 91,000. दैट इज़ योर आंसर. नाउ let's see question number 2. Page number 49 of your textbook. The question is, the receipt and payment account of Hari Mohan Charitable Institution is given. Prepare the income and expenditure account for the year ended March 31, 2015 after considering the following. इस न्यूमेरिकल में आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और उसके बेस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. 3 तरह के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखना है. नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इट. Before preparing income and expenditure account, you should remember कि income and expenditure account में हम केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को ही शो करेंगे. कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते. और दूसरा इम्पॉर्टेंट आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय केवल और केवल करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर को ही शो किया जाता है. अगर कोई इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इट. सबसे पहले
heading in the books of Hari Mohan Charitable Institution. What we are preparing? Income and expenditure account. Left column is expenditure, debit side, and the credit side column is income. अब वन बाय वन इनके एक्सपेंडिचर के आइटम हम देखेंगे. 2 सैलरीज 10,400. सैलरीज से रिलेटेड हमें एक एडजस्टमेंट दिया है. 1,200 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे. तो टोटल सैलरी विल बी 11,600. नाउ सेकेंड इज रेंट एंड टैक्सेस. 4,000 गिवन. रेंट से रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है. 800 रेंट आउटस्टैंडिंग है, वी हैव टू ऐड हेयर 4,800 टोटल रेंट एंड टैक्सेस. द थर्ड इज एडवर्टीजमेंट. 1,100 is given. Again one adjustment is here given in the numerical. 200 rupees of advertisement is outstanding. So the total advertisement we have to show 1,300. Next is to insurance 4,800. To printing 1,000. To postage 300. To charities 60,000. Now come to the income column. By donation. डोनेशन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हमें दिया है फर्स्ट नंबर का. इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसीज एंड डोनेशंस एज इनकम. डोनेशन का 50% अमाउंट ही हमें कंसीडर करना है इनकम के तौर पर. तो यहाँ पर टोटल 32,000 का डोनेशन दिया है. इसका 50% दैट इज 60,000 वी विल रिकॉर्ड हियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बाय सब्सक्रिप्शन 50,200. बाय लीगेसीज अगेन लीगेसीज का भी 50% अमाउंट ही हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, दैट इज 12,000. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800. अगेन थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2,000 ड्यू है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 5,800. द नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800. नेक्स्ट बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. पुराने न्यूज़पेपर को बेचने से जो भी इनकम हुई दैट इज़ 500. अब डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड ग्रेटर है. इस न्यूमेरिकल में जब आप टोटल करके देखेंगे तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा होगा, दैट इज़ 85,300. इसमें से डेबिट या एक्सपेंडिचर के पूरे आइटम को जब आप डिडक्ट करेंगे तो 1,500 आपका बैलेंस बचेगा. इस बैलेंस को हमेशा याद रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा. अगर इनकम कॉलम का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर का टोटल कम है तो जो बैलेंस होगा दैट इज़ द सरप्लस. तो आपको यहाँ ऐसा लिखना कंपलसरी है, टू सरप्लस दैट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर.